Hello guys, good morning. This is Maggie Raj here, and now I am going to get discuss about the capillary tube and surface tension in the capillary tube. So let me discuss here. What is capillary tube? So capillary tube is a such type of tube in which a several of tiny holes by which liquid rises due to the effect of surface tension. Okay, इज कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब, यानी एक ऐसी ट्यूब जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं और सरफेस टेंशन के इफेक्ट की वजह से उसमें लिक्विड राइज करता है। ओके, तो ऐसी ट्यूब को कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। सो इट इज इक्वल टू इट इज अ सच टाइप ऑफ ट्यूब इन विच सेवरल टाइप्स ऑफ टिनी होल्स एंड लिक्विड राइजेज इन द शेप ऑफ कॉन्केव और कॉन्वेक्स ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन is called capillary tube. So let me discuss here. This is a capillary tube whose both ends are open. This and it is also immersed in the homogeneous medium like water. Okay, so let me discuss. This shape is in this type. It may be convex shape. So let me consider here this, and liquid rises in this tube is at height s. So this is a height up to which liquid rises. Okay, so here this is a point where surface tension is T and angle of contact is theta. So here at this is theta and this is surface tension. Okay, so it's this component is equal to horizontal, so T cos theta. So for this is also T cos theta, and vertical is T sin theta. So for this is also T sin theta. Okay, so देखिएगा यहाँ पर T sin theta की शेप कुछ इस तरीके से है। T sin theta अगर यहाँ पर है तो इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर होगा। कहीं पर भी देखेंगे तो इसी तरीके से इसके इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो यहाँ पर तो रिजल्टेंट टेंशनल फोर्स 0 हो जाएगा, बट पूरी सरकमफ्रेंस में जो अपवर्ड फोर्स वर्क कर रहा है ये पूरी कितनी है 2 पाई आर, और इसमें जो अपवर्ड फोर्स वर्क कर रहा है इन द टर्म्स ऑफ सरफेस टेंशन दैट इज इक्वल टू टी कॉस थीटा। इस तरीके से वर्क कर रहा है। तो फोर्स due to surface tension यानी T cos theta equals to F by L, और L क्या है 2 पाई R। सो F की वैल्यू आ जाएगी T cos theta into 2 पाई R। This is first equation. Okay, so let me consider a capillary tube in which both ends are open and immersed into a homogeneous medium like water, in which liquid rises up to height h, where the components of its surface tension is this T cos theta and T sin theta, where T sin theta are neglected due to the equal and opposite direction, but in the whole circumference T cos theta works in upward direction, which works to the rising liquid in upward direction. So this force is equal to the T cos theta into 2 pi r. And now let me discuss here the weight of this liquid which rises in this tube. Okay, so this force is equal to P cos theta into 2 pi r. And now this shape of the liquid is in this way. This is height x, so its volume is, देखिएगा इतना कॉर्नर का लिक्विड का वॉल्यूम और होगा, ये हाइट h का वॉल्यूम है। तो इतने के लिए हमने क्या किया, कंप्लीट इतने का वॉल्यूम हमने निकाला ये। ठीक है, ये वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर ये रेडियस r होगी और ये भी r होगी, तो इतना जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका वॉल्यूम हो जाएगा पूरे का पाई r स्क्वायर इंटू h, क्योंकि हाइट भी h ही है, h डैश। ओके, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा। इसमें हमने इतना वॉल्यूम कट आउट किया तो ये हो जाएगा स्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। सो पाई आर क्यूब माइनस 2 पाई आर क्यूब बाई 3, सो दैट इज इक्वल टू पाई आर क्यूब बाई 3। दिस इज इक्वल टू v डैश
and volume of this part is equals to this part is equals to V equals to pi. This is, let me consider this is V double dash and this is V dash, pi r square into h. So total volume of rises liquid, it is equals to V dash plus V double dash. So pi r square h plus pi r cube by 3. So pi r square h plus r by 3. And weight is equals to मास इंटू जी. मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. वॉल्यूम हमने निकाल लिया है ये पाई आर स्क्वायर एच प्लस आर बाई 3. डेंसिटी डी है, ये हो जाएगा मास इंटू जी. सो कंप्लीट जो इसका वेट आया लिक्विड का वो कितना आया ये. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. अब हमने जो फोर्स इस पर अपवर्ड लग रहा था वो फोर्स किसको, इस वेट को बैलेंस कर देगा. सो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एक बार देख लीजिएगा. यहाँ पर जो h हाइट तक लिक्विड राइज किया तो उसका वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन एक कॉर्नर पर इसे कॉन्केव शेप में है तो इतने का वॉल्यूम क्या होगा, तो हमने इतने पार्ट का वॉल्यूम निकाला जो कि सिलेंड्रिकल है. सो पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट यहाँ पर इस सिलेंड्रिकल पोर्शन की रेडियस के इक्वल ही होगी क्योंकि बहुत नेग्लिजिबल पार्ट है. इसमें से हमने इतना पार्ट जो है ये वाला इसको माइनस कर दिया और ये पार्ट जो है इस तरीके से हेमी स्फेरिकल पार्ट है तो इसका वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब. तो इसका इतने का जो वॉल्यूम था ये पार्ट का V डबल डैश हमने लेट किया वो आ गया इतना, और जो इसका था वो था पाई आर स्क्वायर. दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल वॉल्यूम आ गया. वेट इक्वल टू होता है mg और m है मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. तो अब हम दोनों ही फोर्स इक्वल कर देंगे. सो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, so t cos theta into 2 pi r equals to pi r square h plus r by 3 dg. Okay, so t equals to pi r square h plus r by 3 dg upon 2 pi r into cos of theta. So it is equals to the t equals to r h plus r by 3 dg upon 2 cos theta. ओके, एंड यहाँ पर अगर आप ऐसा कर दें कि if r by 3 tends to 0 then t equals to r h dg upon 2 cos theta. This is the surface tension. ओके, अब अगर हम इस कैपिलरी ट्यूब को थोड़ा सा बेंड कर दें किसी एंगल पर, if tube bend inclined at an angle alpha, means ये इस तरीके से ट्यूब थी. हमने इसको क्या किया, इसमें h हाइट तक लिक्विड राइज किया था, हमने इसको इंक्लाइन कर दिया तो ये कुछ इस शेप में आ जाएगी अल्फा एंगल पर. तो देखिएगा अब यहाँ पर जो लिक्विड डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो मान लीजिए कि h डैश लेंथ तक के लिए हो गया ये, और ये कितनी हाइट तक पहले था, h तक के लिए. तो ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल अल्फा ही रहेगा. तो इसके लिए हम इतना ट्रायंगल एलिमिनेट कर दें. ये h है, ये h डैश है, ये एंगल अल्फा, सॉरी ये अल्फा है. तो cos अल्फा इक्वल्स टू h बाई h डैश. so h डैश इक्वल्स टू h बाई cos अल्फा where t equals to r h dg upon 2 cos theta. Due to this h equals to 2t cos theta upon r dg. हमने h की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे
और यहाँ पर कितनी हाइट तक लिक्विड स्प्रे हो जाए स्प्रेड हो जाएगा उसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। भाई पहले h हाइट तक था तो आप इसको जब बेंड कर देंगे इंक्लाइन कर देंगे कुछ एंगल पर तो कुछ ज़्यादा हाइट पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो वो हाइट h डैश हमने लेट कर लिया। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।